Do you know what is brain rot? होता क्या ही है? So recently I went to a concert, alright? So a lot of concerts are going on over here and there. It's a winter season. So we'll find a lot of people, drinking alcohol, smoking weeds, and a lot of shits going on. And that's what exactly brain fog looks like. People are doing randomly things that is like has no purpose, that doesn't provide any value on the table, right? So simply put, that's not beneficial, right? So a lot of youth are involved in this, like 20 years, 22 years old guys who are just in college and all, just passed out from school and all. They are doing all this kind of activities which will result them in nothing but a bad health. Overall, they will not be able to see themselves where they have pictured them. तो इससे क्या होता है ना, बेसिकली when people do a lot of things like which has no value. आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो, आप गांजा पी रहे हो, चरस पी रहे हो, भान वगैरह, lot of activities are there that is harmful for your health or that has no value. So when you do all this kind of things, that is brain fog or brain rot, I would say. brain rot में आप कुछ लॉजिकल काम नहीं करते हो, मतलब जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है. देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हु आर इन देयर अर्ली 20s, like the 1% I would say who are hitting the gym, who are advancing themselves, who are doing a lot of hard works. जिम जा रहे हैं, वो सेल्स का काम कर रहे हैं, या फिर दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स, कोडिंग हो गया या फिर सेल्स हो गया, या फिर आपका कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, प्रमोशन वगैरह सीखना, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आजकल का दुनिया में एंड लोग वो कर रहे हैं. So these are like the 1% people, जो लोग आज से 5 साल बाद they gonna become the millionaire, right? So that is who are at the peak. So you'll have to understand like how you can change your 2025 entirely. So why I am like covering this and all. So this is the basics that you need to understand why you are not able to focus on your trading or whatever you are doing. Yeah, because you're scrolling your phone just like this, doing nothing. So I have seen a lot of people who are in this Gen Z. Basically I would consider themselves in Gen Z like the lower category, because they're not doing any kind of work to level up themselves, to upgrade their version. So we are not basically machines and all, but we need to keep upgrading ourselves. We need to learn skills. If we won't be upgrading ourselves, then we won't be able to compete after 2-3 years, right? So in order to compete, we not only need degrees, but to be sustainable, you need a lot of other knowledge. Apart from your degree, whatever you are doing in school, college, whatever you are doing. And in today's world, if you don't have any kind of knowledge in this particular field, you would be outdone by a lot of peoples. And they will be some of your batchmates and who knows. So yeah. So now, what kind of mindset do you need, right? So you need to have abundant mindset. Like you need to believe in yourself. You need to know your own potential. You can't know until you try your best. You need to hit the gym. You need to start running and do whatever you are doing. You need to excel yourself. So if you are hitting the gym and if you are able to do 10 reps, try doing one more. If you are doing 10 hours of reading, try doing 1 hour more. If you are doing tackling clients and all, if you are doing 20 calls called a day, trying doing one more. Push your limits. That's what basically I am trying to say over here. Push your limits. Okay, understand the basic concept of this. You need to have this kind of mindset. You need to have self-belief that yeah, I am able to do this. I have the potential. I have the power. I have the mindset. I have the required skill set. First comes the beliefs, and then if you believe in yourself, then you can outdo anyone. Okay, so now you need to take actions. Beliefs and all, it's okay, but after that, if you keep on like writing and keep on taking on notes and all, but if you don't take any actions over it, it will be totally useless. All right, perfections को भूल जाओ. Perfections, totally forget perfections. आप पहला वीडियो जो बनाओगे वो परफेक्ट नहीं होने वाला. पहला ट्रेड जो आप लोगे वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस थिंग. यू नीड टू क्लियरली पुट दिस इन योर हेड कि पहला जो भी आप करोगे उसमें आपका 100% अच्छा नहीं होगा. सपोज दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट दिस काइंड ऑफ वीडियो, राइट? I mean, I
I do talk with a lot of clients and all. I have, agencies running and a lot of shits are going on, but still I do stammer sometimes because of sometimes I am not able to present myself. I am not able to deliver what I want to deliver actually. So yeah, a lot of things are there. So then you need to have this kind of self self-worth. You need to know your self-worth, like where you are coming from and what kind of skills do you have. Now basically, in today's generation, as I told, today's world, if you don't have any kind of skills, practical tools, or if you do not master any kind of skills, whether it be AutoCAD, whether it be ChatGPT, whether it be Adobe Premiere Pro, whether it be Filmora, whatever software, whatever things you are in your particular field, you need to master some sort of skills, whether it be coding, whatever be it. It can be a speaking skill also, communication skills. You can also do sales. Like sales, you cannot master sales overnight. Talking about sales, it will require you at least 6 months to 1 year to get the idea of sales, how you can convince someone to purchase a product. If you know sales, if you can sell yourself, you can do anything. In relationships also, you have to sell what is the outcome, what is the thing that you two are getting into. I won't get into details, but you can understand, I hope so. Learning how to learn, you need to understand like the concept of getting or acquiring new skills in off time. What I do, मैं प्रेफर करता हूँ कोई भी पॉडकास्ट देखना, जिम वगैरह में भी जब मैं होता हूँ तब मैं ट्राई करता हूँ पॉडकास्ट वगैरह सुनने का. इट डज़ नथिंग बट इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड एंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देता है कि आई एम विद देम एंड आई एम ट्राइंग टू बेटर create a better version of myself. So that's why you need to you should actually listen to podcast, and you should listen to all those kind of things that you will be doing. If you are a content creator, you should listen to podcast related to content creation, and if you are someone who is into trading, you should listen to trading stuffs, right? So this is like the basics things that I would share. And then there is reading concept and all. You should also read a certain number of pages, whatever it be, like in whatever subject or whichever field, but you need to gain knowledge from it, not like reading manga or reading any story or novel. So you need to understand that as well. Now after that, a lot of people don't take care of their mental health, inner well-being. That is also necessary. Open communication is must. Although I wouldn't recommend you sharing the details of your plans and all, but you should communicate with your friends, family or professionals in order to free up your emotions, right? So I learned this late, but I understood that the more you share, the more you feel like comfortable, and the feathery feeling that you will get, the lighter you will feel. But you need also to know like what you are sharing and what you are not to share. You cannot share like 100% of the things, your plans. Suppose you are not feeling well and all, you have got friends and all, but you won't be sharing with them your bank account or something like that, right? Basically, what I am trying to say, I hope you have understood. I am sharing my real life experience over here. So open communication is must, I would say. Self-reflection, you should I would suggest you to do journaling, right? At the end of the day, you should write whatever you are doing, whether it be creating content, whether it be taking trades, whether it be balancing your diet, whether it be heading to the gym, whatever you are doing, you should write a journal or anything as a search. Do it for 21 days and you will see a massive change in yourself. That is what I would suggest you to do. Now then after that, physical health, it is also necessary for you to be physically fit. लाइक फिजिकली जब आप फिट होते हो ना, तब आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक लिटरली कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है? फिजिकली फिट रहते हो, आपका ये बॉडी जो है ना, ये आपका टेम्पल है, ठीक है? अब टेम्पल को जो है आप अगर क्लीन नहीं रखते हो, पूजा वगैरह कैसे करोगे? तो वही बात है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. यू नीड टू हिट द जिम रेगुलरली और रनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वट एवर यू आर डूइंग, यू नीड टू डू इट रेगुलरली. 1 hour 2 hours अ डे इज़ फाइन. ऑलराइट, एक्सरसाइज रूटीन कर लो, पुश पुल लेग होता है जिम में, वो ट्राई कर सकते हो, या फिर फुल बॉडी वर्कआउट है, जो भी है आप ट्राई कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू दिस, इनिशियल डेज में आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील लाइक गोइंग टू द जिम एंड पुटिंग द एफर्ट्स, बट सून और लेटर यू विल स्टार्ट टू सीइंग द रिजल्ट, राइट? नॉट विद इन 3 months, बट या 6 months लग जाएंगे आपको
कुछ चेंजेस दिखने में, तब आपको मोटिवेशन सा फील होगा। एंड धीरे धीरे ना ये आसान काम बनता जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी आपका आसान बनता जाएगा। सिंपल एज दैट। एंड इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, you need to also understand whatever you are putting in yourself, right? whatever like न्यूट्रिशन डाइट आपको मेंटेन करना है, जो भी खाना खा रहे हो, फास्ट फूड वगैरह, बाहर का जंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, डोमिनोज, वो सब आप उठा के खा रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो आपका ही हेल्थ को ख़राब करने वाला है। आपका गट हेल्थ वगैरह वो सब बेकार हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आप उल्टा पुल्टा खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगा शरीर में काम करने लायक, ठीक है। यू विल नॉट फील गुड, यू विल नॉट फील मोटिवेटेड, एंड यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू कन्विंस अदर पीपल, राइट। सो फिजिकल हेल्थ हो गया। अब आता है आपका अपीयरेंस, राइट। सो अपीयरेंस इज मस्ट, दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। आई हैव बीन टू Bangalore, Delhi and Mumbai and a lot of places, and what I have seen while I was in the conference or networking events and all, what I have seen is people judge you over your dress and appearances, right? तो मैं जिस तरीके से दिखूंगा उस तरीके से आप मेरे को जज करोगे। सपोज़ जब मैं क्लाइंट्स वगैरह के साथ मीटिंग वगैरह पे फिजिकली जब मीट करता हूँ, तब मैं वो देखता हूँ लाइक ये बंदा कितना अपने आप पे काम कर रहा है, कितना अपने आप पे खर्चा किया है, लाइक हाउ वेल डज ही लुक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर डेट पे भी आप जाते हो तो लड़की आपको ये देखेगी कितना ग्रूम्ड हो आप, समझ में आ रहा है, कितना ग्रूम्ड हो, कितना आपने अपने आप को जो है सही तरीके से मेंटेन करके रखा है, तब भी आपका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अपीयरेंस बहुत ही अच्छा खासा एक रोल प्ले करता है, चाहे आप बिज़नेस में हो या फिर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी आप देखोगे तो आपको जितना अच्छा आप दिखोगे। अब अगर कोई बंदा नॉर्मली कैजुअल लोअर्स वगैरह में आप घूमने चले जाओगे, किसी से बिज़नेस का बात करने जाओगे, तो आपको डेफिनेटली सीरियसली नहीं लेगा। तो वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको जो है स्किन केयर वगैरह, अगर आप सोचते हो कि लड़कियों का काम है तो स्किन केयर वगैरह नहीं करना है, आप टोटली रॉन्ग हो। तो स्किन केयर वगैरह आप भुवन वाम वगैरह का पॉडकास्ट वगैरह या फिर जो भी है वो आप देख सकते हो। तो स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को लड़कियों वाला 1 घंटा 2 घंटा से करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में 4-5 टाइम्स ज़रूर करना चाहिए स्किन केयर वगैरह, मतलब सनस्क्रीन वगैरह, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर क्लीनिंग, फिर फेस वॉश वगैरह नॉर्मल जो मेन के लिए होता है वो करना चाहिए। अब मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम साबुन से मुँह धो उसके बाद ये सब करो, और या फिर साबुन से अगर आप मुँह धोते हो तो फिर ये सब मेक सेंस नहीं करेगा आपको, ओके। Now talking about wardrobe and essentials, right? So as you can see me wearing a single color of clothing, right? तो मैं यहाँ पे जो कपड़ा पहना हूँ इसमें आप लोगों को कोई लोगो वगैरह नहीं दिखेगा। So that is what you should like kind of old money you could say और old school style। तो इसमें क्या होता है, आप बेसिकली एक टाइप का जो है कपड़ा को चूज़ करते हो। तो आप मतलब बेसिकली फंडा ये है कि आप इसके साथ मल्टीपल कलर कम्बिनेशन, मल्टीपल पैंट्स वगैरह के साथ इसको पहन सकते हो, और ये सोफिस्टिकेटेड, सिंपल और आपको एक मतलब अच्छा खासा मैच्योर सा लुक देता है। इसके साथ आप एक वॉच पहन लो, कोई भी लेदर का हो या फिर चेन वाला, लेकिन सिंगल कलर का वॉच पहनना, लेदर का हो या फिर गोल्डन हो या फिर सिल्वर हो, मतलब सिंगल कलर वगैरह वैसा टाइप का वॉच पहनना जिसका मेक सेंस करेगा, मतलब जो आपका फैशन के साथ जाएगा। और ये चीज़ ज़रूर आपको लाइक मेंटेन करना चाहिए कि आपका जो है वॉच का कलर, जूता का कलर और बेल्ट का कलर वो तीनों एक होना चाहिए। और चश्मा का कलर अगर मिल गया वो भी अच्छा बात है, और टोपी का कलर मिला सकते हो अगर टोपी पहनते हो डेफिनेटली, तो वो भी कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आता है ग्रूमिंग। Grooming is like essential, right? Grooming and hygiene. I have seen a lot of people. I have been on a lot of meetings, and I have been to dates and all as well. What I have noticed is like I personally try to keep myself in a hygienic manner and all. Like I do check whether I am smelling good or not. And I have seen it's like a major turn off even for guys when the other guy is smelling pretty bad. राइट, आई हैव ऑल्सो बीन विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल। मैं तो मुँह के सामने बोल देता हूँ लोगों को कि अगर वो मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई परफ्यूम है तो परफ्यूम लगा ले, मैं सीधा बता देता हूँ। हाँ, ये बात भी है कि अगर आप कहीं पे भी कॉलेज वगैरह पे भी जाते हो, अगर आप गंदा स्मेल करते हो तो लड़कियाँ भी आपके पास नहीं आने वाली है, तो वो आपको समझना भी पड़ेगा। तो ट्राई यूजिंग परफ्यूम मोर। और भैया सर्दी का मौसम है लेकिन नहा लेना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, और शेविंग वगैरह आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अब देखो मैं जैसे कि अभी शेविंग वगैरह को लेके उतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जो है मतलब आई एटलीस्ट ट्राई टू शेव, लाइक मेरे को क्लीन शेव वाला टाइप पसंद नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर क्लीन शेव आपको अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली आपको क्लीन शेव के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है बियर्ड वगैरह थोड़ा बहुत रख सकते हो तो आपको जिस भी स्टाइल आपको सूट करता है उसी स्टाइल में रखना चाहिए। तो ये हो गया ग्रूमिंग और हाइजीन का इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। और नाखून वगैरह आप देख रहे हो, मेरे नाखून वगैरह भी आपको सही से रखने चाहिए, इससे भी एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। जूता वगैरह जो भी पहनो,
कोशिश करना कि सिंगल कलर शूज़ पहनो और लेदर वगैरह शूज़ ज़्यादा फॉर्मल वगैरह जो होते हैं या फिर कोट वगैरह के साथ पहनो तो वो अच्छा लगता है। फिर आता है भैया कंक्लूजन की बात करें तो देखो, अगर बताऊं तो आपको एक ऐसा टाइप का क्लोजेट बनाना है, मल्टीपल टाइप का, यहाँ से ये उठा लिया वहाँ से वो उठा लिया, ऐसा नहीं है। क्लोजेट में आप लोगों को सोफिस्टिकेटेड क्लोथ रखो जो कि ज़ारा, जूडियो वगैरह कहीं से भी मिल जाएगा, जूडियो का भी आप उठा सकते हो, या फिर जो भी आपका बजट के अकॉर्डिंग सही लगे सिंगल कलर का शर्ट पैंट वगैरह उठाओ जो कि सोफिस्टिकेटेड बीच कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, या फिर आपका वाइट कलर, ब्लैक कलर। तो ChatGPT के पास जाओ, अपना फोटो अपलोड करो, बोलो मेरे पे कौन सा कैसा टाइप का कपड़े, कैसा टाइप का कलर मैच कर रहा है, वो आपको पूरा लिस्ट बता देगा। और अभी तो मतलब साल ख़त्म होने वाला है, हुई 28 तारीख है, तो ज़रूर वो देखो, वो देख के उस हिसाब से अपना वार्डरोब को फिल करो। सही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है, क्योंकि अपना चैनल जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है। अब ट्रेडिंग को हम लोग किस तरीके से साइड में रखें वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ट्रेडिंग का जो मेजर प्रॉब्लम है ना लोगों का, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है। अब अगर दिन भर आप लाइक ट्रेड्स लेते हो ना, इतना ज़्यादा ट्रेड लेते हो, आपका बिलीफ सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। तो ट्रेडिंग को मिनिमाइज़ करो, जितना हो सके कम ट्रेड लो, और जितना हो सके ईयर एंड का वक्त है अभी तो ट्रेड मत ही लो। और ये जो आपका रहता है ना लाइक स्कार्सिटी माइंडसेट, इसको चेंज करो कि ये ट्रेड चला गया, मैं अगला ट्रेड में नहीं ले पाऊँगा, भूल जाओ, ये सब नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी मल्टीपल्स मिलते रहेंगे आपको मार्केट में, ठीक है। द बेस्ट टाइम इज़ नाउ बट इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा मतलब साइकोलॉजी मैंने बहुत सारा वीडियोस पे बना रखा है, वो सब आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अपने आप बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अपना एनालिसिस पे भरोसा रखो, स्टॉप लॉस लेना सीखो। मैं आज भी बता रहा हूँ स्टॉप लॉस ज़रूर लो, भले ही 10 पॉइंट कर लो, 20 पॉइंट कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लो, आपका कैपिटल को ये बचाता है, ठीक है। स्किल्स पे फोकस करो, ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी स्किल्स होता है वो सीखो, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ये सब सीखो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये सब सीखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है मैंने वीडियो बना रखा है वो भी देख सकते हो। फिर बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग किस तरीके से काम करता है वो भी आपको पता, मतलब मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत डिटेल में। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बना दूंगा। अब आपको लोगों को ट्रेडिंग का जो मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी ये सब भी देखना होता है, ठीक है। मतलब आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो स्ट्रेस थोड़ा कम लो और मेंटल हेल्थ का अपना ध्यान रखो। अगर आप लगातार 5-6 दिन लॉस में हो तो कुछ हफ्तों के लिए आप दूर हो जाओ ट्रेडिंग से। ये मैं आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। एक हफ्ता के लिए भूल जाओ। मैंने कई अपना दोस्तों को देखा है 1 महीना के लिए चले जाते हैं, वो ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, फिर उन लोगों का साइकोलॉजी सही होता है, फिर वो लोग आते हैं। तो यू शुड इम्प्लीमेंट दिस, बैलेंस इज द की ओवर हियर। फिर आपका आता है फिजिकल हेल्थ, जैसे कि मैंने बता दिया था आप लोग को डाइट वगैरह सही से करना है, रूटीन करना है, रूटीन फॉर ट्रेडिंग भी आप लोग को लाइक करना है, ट्रेडिंग किस तरीके से आप लोग को करना है ये भी बता दिया। अपीयरेंस मैटर करता है, प्रोफेशनल दिखना आप लोग को, लाइक फाइनेंशियल वर्ड वगैरह ये सब सीखना पड़ेगा, किस तरीके से फाइनेंस काम करता है। और कंक्लूशन की अगर बात करें तो आपका जो माइंडसेट है, स्किल्स है, हेल्थ है, अपीयरेंस है, सब कुछ आपका सक्सेस के तौर पे कंट्रीब्यूट करता है। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग विल चेंज योर लाइफ वन डे और अनदर, राइट। बिल्डिंग कम्युनिटी, अब जितना भी आप ज़्यादा बाहर जाते हो, ये करते हो, लोगों से आप लोगों के बारे में बताते हो, रैंडम लोगों से, मतलब वैसा नहीं है कि आप लोगों को कहीं पे जाके भी अपने बारे में बोलना है। थोड़ा नेटवर्किंग इवेंट पे जाओ, कहाँ पे हो रहा है देखो, दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप लोग का दोस्त लोग कैसा है, ठीक है। आप 10 लोग, आपका जो फ्रेंड सर्कल में जो 10 लोग हैं जिन लोगों के साथ आप लोग लाइक दिन का 80% टाइम बिताते हो, उन्हीं के तरीके का आपका माइंडसेट जो है वो होता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो आई होप आई हैव लाइक थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड डू कमेंट डाउन कि आप लोगों को क्या लगता है 2025 कैसा रहेगा और क्या आप लोग चेंज के लिए तैयार हो या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। बाय बाय, sayonara।